آج کے آن لائن کلاس میں دہم جماعت کے تمام طلباء طالبات اور ان کے سرپرستوں کو السلام علیکم۔ آج کے آن لائن کلاس میں سبھی دہم جماعت کے بچوں کا خوش آمدید۔ بچوں، آج اس میں اپن دوسرا سبق اپنے ہمسائے سے کنہیا لال کپور نے اس کو لکھا ہے۔ مزاحیہ سبق ہے، دو دوست کی اس میں باتیں ہیں، گپ ہے۔ پہلی بات دیکھیے، ایک مرتبہ دو گپ باز بیٹھے ہوئے اپنے خاندان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے کہا میرے دادا کے پاس اتنا بڑا استبل تھا کہ جس میں بیک وقت ایک ساتھ 10,000 گھوڑے رکھے جا سکتے تھے۔ دوسرے نے کہا میرے نانا کے پاس اتنا طویل باز تھا کہ جب وہ اسے لے کر گھر کی چھت پر کھڑے ہوتے تو باز بادلوں تک پہنچ جاتا، جب چاہتے بادلوں کو ہلا کر بارش برسا لیتے۔ تو پہلے گپی نے پوچھا تمہارے نانا اتنا بڑا باز کہاں رکھتے تھے؟ دوسرے باز نے کہا کہ تمہارے دادا کے استبل میں رکھا کرتے تھے۔ اس طریقے سے دونوں کی باتیں اس میں بتائیے، مزاحیہ سبق ہے۔ بعض لوگ اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے اسی طرح شیخی بگاڑتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے اکثر پڑوسی بھی اپنے آپ کو اوروں سے بہتر ثابت کرنے کے لیے مبالغے سے کام لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ کنہیا لال کپور نے اس مضمون میں سماج کے اسی برائی کو نشانہ بنایا ہے، طنز کیا ہے۔ جان پہچان دیکھیے، کنہیا لال کپور 27 جون 1910 کو ضلع لال پور میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وہ انگریزی کے استاد مقرر ہوئے۔ بعد میں گورنمنٹ کالج موگا جو پنجاب میں ہے، انہیں پرنسپل کے عہدے پر فائز کیا گیا اور یہیں 1980 میں ان کی وفات ہوئی۔ طنز مزاح نگار ہے۔ جرأت اور بے باکی کنہیا لال کپور کی خاص پہچان ہے۔ جرأت بے باکی سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور نثر نگار کا، شاعر کا کام بھی یہی ہوتا ہے، سماج میں ہونے والی اچھائی اور برائیوں کو وہ اپنے اس میں مضمون میں قلم بند کرتا ہے۔ وہ سماجی ناہمواریوں کی جاندار تصویر پیش کرتے ہیں۔ سماج میں ہونے والی اونچ نیچ برائیاں جو ہے وہ ساری باتوں کو اس میں پیش کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں طنز اور احتجاج، طنز بھی ہوتا ہے لیکن مزاحیہ انداز میں کہ کسی کو برا نہ لگے، احتجاج مخالفت بھی ہوتی ہے۔ انہیں پیروڈی لکھنے میں خاص مہارت حاصل ہے، جس کے طنزیہ مزاحیہ خاکے بھی مقبول ہوئے۔ مزاحیہ لکھتے ہیں وہ۔ ان کی کتابیں ہیں نوک نشتر، بالوں پر، سنگ و خشت، چنگ و رباب اور کامریڈ شیخ چلی ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ اس طریقے سے ہم نے سبق دیکھا، پڑھا ہے۔ دو گپ باز باتیں کر رہے، کہتے ہیں وہ کہ آؤ میاں سمجھوتا کر لے۔ آج تک ہم ایک دوسرے پر رعب جمانے کے لیے ایک ایسی باتیں اور حرکتیں کرتے رہے ہیں جنہیں فضول نہیں مزے کا کھیس کہا جاتا ہے۔ دو دوست باتیں کر رہے، کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، رعب جمانے کے لیے، برتر دکھانے کے لیے ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اس طریقے سے باتیں چل رہی ہیں۔ لیکن سوال یہ کہ آخر ہم کب تک ایک دوسرے کو محض مروب کرنے کے لیے اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتے رہیں گے؟ ایک دوسرے کو آگے دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کب تک ہم خرچہ کرتے رہیں گے؟ یا جھوٹ بول کر اپنی عاقبت خراب کریں گے؟ آخرت جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری آخرت بھی خراب ہو رہی ہے۔ اس طریقے سے ایک دوسرے سے وہ سوال کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی رئیس ابن رئیس نہیں۔ دونوں باتیں کر رہے ہیں کہ ہم ابن رئیس نہیں ہیں، یعنی مالدار باپ کے اولاد نہیں ہیں، بلکہ تم ایک معمولی تاجر ہو اور میں ایک معمولی معلم کہتا ہے اس میں سے کہ تم ایک تاجر ہو اور میں ایک ٹیچر ہوں، استاد ہوں۔ اور دونوں پچھلے 5 برس سے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی بیکار کوشش کر رہے ہیں، بڑھتری حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کا ذکر چلتا ہے۔ چنانچہ اگر تم کہتے ہو کہ تمہارا بھائی دہلی میں مجسٹریٹ ہے تو میں تمہیں مطلع کرتا ہوں کہ میرا بھائی الہ آباد ہائی کورٹ کا جج ہے۔ تم مجسٹریٹ بتاتے ہو تمہارے بھائی کو اور میں جج بتاتا ہوں، جبکہ جھوٹ ہے۔ حالانکہ حقیقت ہے کہ تمہارا بھائی کسی مجسٹریٹ کا چپراسی ہے۔ اور وہ استاد کہتے ہیں تاجر کو کہ تمہارا بھائی مجسٹریٹ نہیں، یعنی جج نہیں، چپراسی ہے اور میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میں اکلوتا ہوں، اس طریقے سے بیٹا ہوں، اکلوتا ہوں بھائی ہوں۔ اس طریقے سے ان کا ذکر چلتا ہے۔ اور آگے اس طریقے سے ہوتا ہے ان کی بات کہ 2 سال ہوئے تم نے کہا تھا میں بیوی اور بچوں کے ساتھ کسی صحت افزا مقام غالباً نینی تال جا رہا ہوں۔ اور آگے اس طریقے سے ان کی بات آگے ہوتی ہے، ذکر چلتا ہے ان کے اعلیٰ۔ استاد جو ہے، وہ ٹیچر جو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تاجر کو کہ میں نے بھی کہا تھا کہ
2 साल में तुमने कहा था, दोस्तों से कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम बीवी के साथ सेहत अफजा मुकाम पर नैनीताल घूमने जा रहे हो, और मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अपने बच्चों और अहलो अहल के साथ ओटा कमंड जा रहा हूँ। लेकिन झूठ था, तुम भी नैनीताल नहीं गए और मैं भी ओटा कमंड नहीं गया। हम एक दूसरे को बरतर दिखाने के लिए, एक दूसरे से आला तर दिखाने के लिए हमने इस तरह की बातें की थी। तूने वहाँ ना जा सके, ये बहाना ढूंढा कि अखलक तो तुम्हारी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई। तुम्हारी भी हालत मुझसे छुपी नहीं है और मेरी भी हालत छुपी नहीं है। तुमने बहाना बताया था कि तुम्हारी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई और डॉक्टर ने घर पर आराम कहा, और मैंने ये बहाना बताया था कि ओटा कमंड जाने की ना जाने की वजह बताई थी कि साले की शादी में जाना है, इंतज़ाम करना है। इस तरीके से उनकी दोनों की बातें चलती हैं। लुत्फ़ है कि मुझे मालूम था कि तुम्हारी बीवी भली चंगी है, और उस्ताद कहते हैं कि मुझे भी पता है कि तुम्हारी बीवी बीमार या नहीं थी, उसकी तबीयत नासाज नहीं थी, और तुम्हें भी पता था कि मेरे साले की शादी नहीं है करके, यहाँ तक कि सगाई तक भी नहीं हुई। पिछले दिनों जब तुमने मुझ पर रुआब जमाने के लिए किश्तों पर एक फ्रिज ख़रीदा था, तो मेरी बीवी मेरे सर हो गई कि हमारे घर में फ्रिज ज़रूर होना चाहिए। बच्चों, आपने देखा होगा समाज में अक्सर ऐसा होता है, पड़ोस में अगर हम लोग किसी के घर कोई चीज़ देखते हैं तो हम लोगों को भी होता है कि नहीं हमारे घर भी चाहिए ये चीज़। तो इस तरीके से ये चलता है समाज का आजकल, बोले तो इस तरीके से ये बन गई है, सोच बन गई है हम लोगों की कि फलां के घर में ये चीज़ है तो हमारे घर में भी होना चाहिए। इन्हीं बुराइयों पर कन्हैया लाल कपूर ने तंज किया है। तो इस तरीके से वो जो उस्ताद होते हैं वो उनको बोलते हैं कि तुमने फ्रिज ख़रीदा था, तो मेरी बीवी भी कहने लगी कि मुझे भी फ्रिज चाहिए। चुनांचे ना चाहते हुए मुझे फ्रिज ख़रीदना पड़ा। अब सुना है कि तुम किश्तों पर टेलीविज़न सेट ख़रीदना चाहते हो, खुदा के लिए ऐसा ना करना। उस्ताद जो होते हैं अपने दोस्त ताजिर से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं है और तुम्हें भी पता है कि मेरी भी हालत ठीक नहीं है, एक दूसरे छुपी नहीं है। तुमने पहले किश्तों पे वो लिया था, फ्रिज लिया था और मुझे भी लेना पड़ा। अब तुम किश्तों पे टेलीविज़न ले रहे हो, लेकिन ऐसा ना करना वरना मैं तबाह हो जाऊँगा। फ्रिज की किश्त भी बड़ी मुश्किल से अदा करता हूँ, अगर टेलीविज़न की किस्त भी अदा करना पड़ी तो मेरा तो दिवाला ही पिट जाएगा। कहते हैं कि फिर मैं फ्रिज की किस्त अभी तक भर रहा हूँ, और अगर तुमने टेलीविज़न लिए तो मुझे भी लेना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कमोबेश तुम्हारा भी यही हाल है। वो जो उस्ताद होते हैं अपने दोस्त ताजी से कहते हैं कि जिस तरह मैं हालात से गुज़र रहा हूँ तुम्हारा भी यही हाल है। बड़ा अच्छा शेर है। तुम मुस्कुरा रहे हो मगर जानता हूँ मैं बेहतर तुम्हारा हाल नहीं है मेरे हाल से। उस्ताद जो होते हैं अपने दोस्त ताजिर से कहते हैं कि तुम मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे मुस्कुराने के पीछे भी गम छुपा हुआ है कि जो मेरी हालत है वही तुम्हारी हालत है, वही हालात से वही दौर से तुम भी गुजर रहे हो। और आगे इस तरह बात होती है कि दूसरी बात है कि तुम खुले बंदों भी इस बात का एतराफ़ नहीं करोगे, लेकिन इतनी हालत तुम्हारे नाजुक है, शिकस्त है, फिर भी तुम सबके सामने खुले बंदों ने सबके सामने इस बात का इकरार नहीं करोगे कि तुम्हारी हालत शिकस्ता है। हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। उस्ताद कहते हैं कि हम दोनों की एक ही जैसी हालत है। कभी कभी तुम मेरा काफ़िया तंग करने की खातिर, यानी काफ़िया तंग करना, परेशान करना, अपनी बीवी के लिए कीमती साड़ी या जेवर ले आते हैं। उस्ताद जो होते हैं अपने दोस्त ताजिर से कहते हैं कि तुम मुझे परेशान करने के लिए अपनी बीवी के लिए कीमती साड़ी या जेवर लाते हैं। उसे पहनकर जब तुम्हारी बीवी शेखी बगाड़ती है, शेखी बगाना बड़कपन बताना, बढ़ाई करना, ये साड़ी 500 में आई है, ये जेवर 2000 का है, तो मेरी बीवी के सीने पर सांप लौटने लगते हैं। और उस्ताद कहते हैं कि भाई तुम्हारी बीवी जब साड़ी दिखाती है या जेवर दिखाती है तो मेरी बीवी हसद के मारे क्या हो जाती है, परेशान हो जाती है, और वो उसी दिन से फरमाइश करने लगती है कि इस कीमती साड़ी या जेवर लाइए, नहीं तो मुझे खाना हजम नहीं होगा और ना नींद आएगी। और उस्ताद बताते हैं अपने दोस्तों से अपनी परेशानी कि भाई जब तक कि बीवी कहती है कि मुझे साड़ी या जेवर नहीं मिलेगा, नींद नहीं आएंगी। गुज़िश्ता इतवार को तुम्हारी बीवी ने अपने बच्चे के जन्मदिन पर 25 औरतों को मदऊ किया था। और एक शिकायत करते हैं अपने दोस्तों से कि भाई तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन था तो 25 औरतों को बुलाया था। अब मेरी बीवी का तकाजा है कि 2 हफ्ते के बाद जब मैं अपने बच्चे का जन्मदिन मनाऊंगी तो कम से कम 50 औरतों को बुलाऊंगी। तो इस तरीके से मुसन्निफ जो है, उस्ताद जो है, अपने दोस्त ताजिर से शिकायत कर रहे हैं कि हमारी बीवी का भी कहना है कि वो 50 औरतों को बुलाना चाहती है।
हर बात में एक दूसरे को नीचे दिखाने की तमन्ना रही है कि अब बीमारियों के मामले में भी एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करने लगे। यहाँ तक कि ये दोनों एक दूसरे को दिखाने के लिए इनकी बीवियाँ भी और बच्चों में भी आदत हो गई थी। बीमारियों में भी एक दूसरे से नीचे दिखाने के लिए झूठ बोल रहे थे। देखिए आगे क्या होता है। चुनांचे मेरी बीवी कहती है कि कल रात मुन्ने को 104 डिग्री बुखार था। बच्चा सारी रात हाय हाय करता रहा तो तुम्हारी बीवी फ़ौरन मुंह बनाकर जवाब देती है, 104 डिग्री बुखार भी कोई बुखार होता है? 3 दिन हुए हमारी बड़ी मुन्नी बीमार पड़ गई तो थर्मामीटर लगाया तो मालूम हुआ 106 डिग्री बुखार है। इस तरीके से तबीयत और बुखार में भी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उसमें भी वो झूठ का सहारा ले रहे थे। जैसे मुसन्निफ की बीवी ने कहा कि उनके बच्चे को 104 डिग्री है, तो ताजिर की बीवी कहती है दोस्तों की कि उनकी बेटी को 106 डिग्री था। वो 6 घंटे बेहोश पड़ी रही, लेकिन मैं ज़रा भी नहीं घबराई। डॉक्टर तक को फ़ोन नहीं किया, सोचा बुखार ही तो है, खुद ब खुद उतर जाएगा। इस तरह से एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए बुखार में और तबीयत में भी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। उसके आगे और दोस्त जो है उस्ताद अपने दोस्त ताजिर से कहते हैं कि एक दिन तुम्हारी बीवी और मेरी भी इस मौजू पर बहस कर रही थी कि सोते वक्त तुम ज़्यादा ज़ोर से खर्राटे लेते हो। तुम्हारी बीवी कह रही थी वो जब खर्राटे लेते हैं तो उनके खर्राटे की आवाज़ एक फरलांग से सुनी जाती है। मुसन्निफ कहने लगे उस्ताद कह रहे थे कि मेरी बीवी कह रही थी कि मैं बहुत ज़ोर से खर्राटे लेता हूँ। तो ताजिर दोस्त की भी कहने लगी कि इतने ज़ोर से ताजिर खर्राटे लेते हैं कि एक फरलांग तक जाते हैं। मेरी बीवी उसे बता रही थी कि हमारे साथ जब खर्राटे लेते हैं तो उनके खर्राटों की आवाज़ सिविल अस्पताल में सुनाई देती है। मुसन्निफ की बीवी कहती है उस्ताद की कि इनकी आवाज़ सिविल अस्पताल तक के सुनाई देती है। कई बार डॉक्टर हमारे घर पर पूछने के लिए आते हैं कि खैरियत तो है। इस तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कहाँ तबीयत में या सोते वक्त आवाज़ में, इस तरीके से वो झूठ पर झूठ, झूठ पे झूठ उनके बच्चों को भी, बीवियों को भी आदत पड़ जाती है। आगे वो शिकायत करते हुए तो उस्ताद जो दोस्त है शिकायत करते अपने दोस्त ताजिर से कहते हैं कि देखो हमारी बीवियों को देखा देखी हमारे बच्चे भी लाफजाने की आदत है, यानी झूठ बोल रहे हैं। अगर तुम्हारा बच्चा कहता है कि मुझे हर रोज़ 2 रुपये खर्च को मिलते हैं तो मेरा बच्चा मजाक उड़ाते हुए जवाब देता है सिर्फ 2 रुपये, हमें तो हर रोज़ 5 रुपये मिलते हैं। मुसन्निफ बताते हैं कि मेरा बच्चा कहता है मुझे हर रोज़ 2 रुपये मिलते हैं, तुम्हारा बच्चा कहता है जेब खर्चे को तो मेरा बच्चा कहता है मुझे 5 रुपये मिलते हैं। आगे देखिए, और अगर तुम्हारा बड़ा लड़का कहता है मेरे बाप ने एक दफ़ा मिट्टी का तेल ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त करके 7,000 रुपये कमाए थे, तो मेरा लड़का इससे बाजी ले जाने की नीयत से उसे बताता है कि मेरे डैडी ने एक मरतबा स्कूल के फ़ंड से 10,000 रुपये उड़ा लिए थे। इस तरीके से बच्चे ये नहीं देखते हैं। एक ताजिर का बेटा कहता है कि मेरे वालिद जो है ब्लैक में तेल बेचते हैं, जबकि कानूनन जुर्म है, बुराई है। और मुसन्निफ जो है उस्ताद उनका बेटा कहता है कि स्कूल के फ़ंड से 10,000 रुपये। तो दोनों बच्चे झूठ बोलते हैं, लेकिन उनके झूठ से वो बच्चे ये नहीं सोचते कि उनके वालिद को नुकसान हो सकता है या सज़ा हो सकती है। मुसन्निफ जो है उस्ताद और आगे अपने दोस्तों से शिकायत करते हैं। वे कहते हैं कि देखो सूरत हाल इतनी नाजुक हो गई है कि डर लगता है कि किसी दिन हम दोनों अपने बच्चे या बीवियों के बयानात की बिना पर गिरफ्तार ना कर लिए जाए। इसलिए आओ आज से समझौता कर ले कि आइंदा हम और न हमारी बीवियाँ और न बच्चे एक दूसरे पर रौब डालने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से मुसन्निफ कहते हैं अपने दोस्तों से कि हम अहद कर ले कि एक दूसरे पर रौब डालने के लिए या बरतर दिखाने के लिए कभी झूठ नहीं बोलेंगे, बल्कि बड़ी शराफत के साथ तस्लीम कर लेंगे कि हम दोनों मामूली हैसियत के हैं। हम ये समझते हैं कि हम रईस तो हैं, एक दूसरे को नहीं सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मुसन्निफ कहते हैं कि हम रईस नहीं हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। इस तरीके से अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करते हैं। मुसन्निफ ने कन्हैया लाल कपूर ने इसमें समाज में होने वाली बुराइयों को या झूठ से इंसान को कैसे नुकसान होता है उसमें तंज़ कशी की है।